Yeah. So whenever this is a blunt trauma, genitourinary trauma, I'll give you in showing to a few important slides. Leave it. Mm. Now look at that. Whenever there is a trauma, there are few rules regarding the trauma. That is a general awareness. Whenever you get question in the theory regarding the trauma, any trauma, whether it is abdominal trauma, thoracic trauma, genital trauma, urinary trauma, so divide into two groups: general management as well as general management and specific. General management, these include the shock and primary survey, secondary survey. So after in GU trauma, same steps we will take. First, initially stabilize the patient, then specific trauma. Now here we are after the stabilization. What is the spot diagnosis? You are in the ward, duty doctor. You are being called from the casualty. Here is a patient of pelvic trauma, genitourinary trauma. So come and visit. Now you will reach there. What important? There is spot diagnosis that only on behalf of those you can easily catch. Because remember one thing: in a trauma patient, elective steps, emergency steps, simultaneous should be taken. Okay, there's no space. You don't have much more time to take those steps which should be taken later on. So first priorities on basis, you take important step. After the stabilization, you are now trying to diagnose the specific trauma. GU trauma has got an important specific spot diagnostic. What is that? Now is that? Look at that. The primary survey, secondary survey, you know very well. In secondary survey, in this slide, look at that. In the last, can I put Foley's catheter? Before confirming that this patient hasn't urethral trauma, you cannot put the Foley's directly, okay? Now, look at it. What are your concerns when you reach at the patient? Whether you put the Foley? What will be the useful of the dipstick test? इसको छोड़ दें आप. What will be the use of dipstick? इसको छोड़ दें आप. Don't remember. Your concern? Look at that. This word of hematuria. What if he or she has got a microscopic hematuria? If there is a gross hematuria, you can check the patient there is a hematuria. But what if there is a microscopic hematuria? If he has a pelvic fracture, he or she has got pelvic fracture or not? Very important. 90% of genitourinary trauma has got associated pelvic fracture. Remember it. 90%. If anybody asks, कौन सा बोन ज्यादा कॉमनली फ्रैक्चर होता है यूरिथ्रल ट्रामा में, स्ट्रेट फॉरवर्ड pelvic fracture. ये आर्थो वाले भी पूछ सकते हैं एंड जनरल सर्जन्स भी और यूरोलॉजी. ठीक है, बी कंसर्न अबाउट दिस थिंग. Yes, this is important. Blood, you remember this word, blood at the meatus. Blood at the meatus. Remember it. I will discuss it. These are the investigations of the urethral trauma. Urethrogram, cystogram, abdominal CT scan. I put question mark in all of these things. Which investigation is very important and concern? Worried about your kidney in the bladder? Okay, you are not worried about your kidney in the bladder, then it's very dangerous. You know, I think in the last lecture when there was a your classes were on, I gave you the lecture of the retroperitoneal hematoma 3 zones. Remember, I think आप लोगों को भूल गया होगा. I hope आप लोग भूल गए होंगे इसको, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिलाता हूँ. देखिए, does the low blood pressure changes you're suspicious for a GU injury? आप पेशेंट को यूरेथ्रल ट्रामा है, पेशेंट का बीपी ड्रॉप हो रहा है, आप
कि सस्पिशियस थोड़ा सा ओवर बढ़ना चाहिए। आप पेल्विस के फ्रैक्चर के साथ हो सकता है कुछ बड़ी वेस्कुलर इंजरी भी हो, इसीलिए पेशेंट बीपी ड्रॉप हो रहा है, स्पेशली इन यंग पेशेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं जी ट्रामा, मोस्टली इट इज ओवरलुक्ड। ये आपको पता है, जी ट्रामा पता नहीं होता, पेशेंट ओवरलुक्ड हो जाते हैं और टेंशन में चले जाते हैं। लॉन्ग टर्म इम्पोर्टेंस इनकॉन्टिनेंस क्या होता है कि लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी शुड बी डेल्ट फर्स्ट। लास्ट पॉइंट देखें इसमें, इस स्लाइड में लास्ट वाली जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, रिमेंबर। Life threatening injuries should be there first and should be given a more, yeah, they're more concerned. Now, what's your plan if you find a patient in a casualty with a trauma and genitourinary trauma? Now, urethral injury, bladder injury, hematuria trauma, and a renal injury. Now, here concern today is only urethral injury. Importantly, you must know about renal and urethral injury. Just few points you should remember regarding the bladder injury. It's not a big deal. For at your final level, you must remember about the bladder injury. There are two types: extraperitoneal rupture of the bladder and the intraperitoneal rupture of the bladder. There are two types of bladder injuries. One is extraperitoneal and intraperitoneal rupture. Now, it's more common. Bladder injuries are more common in female than the male. Why? Reason is that bladder is at the stage of the empty bladder is collapsed. It's not a pelvic organ. When it is distended, it bulges above the pubic symphysis. Mostly female during the traveling, they are used to hold the urine. Their bladder is full, and they are waiting for the socially acceptable environment to avoid. That's why their bladder during the journey, mostly they are running, doing their journey with the full bladder. So God forbid seat belt injuries or any accident occur, RT occur, so bladder easily rupture in a female as compared to the male. So there are only two types: bladder injury, interperitoneal and extraperitoneal injuries. Okay. Now we are focusing more on urethral injuries. These are the, you know very well, upper tract injury, upper tract, lower tract, you must know extragenitally. There are three major divisions of the urinary tract. Upper tract include kidney and urethra, lower tract, bladder and urethra, and extragenitally is separate. Look at that. Almost exclusively in male. Urethral, not a bladder, okay? Urethral trauma, almost exclusively in male. Why? Because female has got a short urethra, only 4 centimeter length, while male has got a 18 to 20 centimeter long urethra. Significant morbidity. What happens if there is urethral trauma? It's not. What are the types of urethral trauma? I don't have slide. You must write down it, note it. Type 1 urethral trauma, type 2 urethral trauma, and type 3 urethral trauma. In type 1, what is type 1? It is only urethral contusion. Contusion, जैसे आपको contusion और abrasion पढ़ी है ना आपने injuries, ऐसे ही. So type 1 injury is a urethral contusion. Type 2 is a partial tear, and type 3 is a complete tear. Type 1, type 2, and type 3. Write on it. Okay. Now, if there is an injury, whether it's a type, irrespective of the type, there are significant morbidity. A stricture will develop later on. Patient may develop incontinence and impotence. Why stricture? Look at that. A stricture causes retention. Is on one side, and opposite side incontinence. Patient cannot hold the urine. Now you think, what's the reason? We will discuss
I'll write down it and we'll discuss in the last 20 minutes. This is you. Remember it. You have to raise this point. Okay. Why the importance? Why the importance? There are three important points. You remember it in the discussion. We will. You have give me whatever you know about this. What? Why the structure? Why the incontinence? Why the importance? Okay. Next. Now, this point I will show in the next slide in detail. Now look at that. Yes, this is the bladder. Look at the anatomy of the male urethra. Pubic symphysis is there. Bladder is there, and prostate. This brownish line, this hole is a urethra. This blue line is a pelvic floor, sphincter area. Okay. Now, behind it, the rectum. Now, this is the pelvic floor. Now, pubic symphysis can, when there is a blunt trauma of the pelvic trauma, this pubic symphysis bone can crush the urethra. So there may be a urethral trauma, posterior urethral trauma. Again, there are types of trauma, posterior trauma. Again, I will show you later on. So look, give them quick look there at anatomy of the urethra, surrounding structures, how it is present, and how it is long and tortuous, surrounded by the bony rib cage. Sorry, bony bone tissue, especially pubic symphysis and coccyx bone behind. These are the part. Now, each part has got different injuries. Bulbous and pendulous urethra, collectively known as anterior urethra. Prostatic and membranous urethra, collectively known as a posterior urethra. Mostly, we are using term anterior urethral injuries and posterior urethral injuries. Remember, then, when there is a blunt trauma due to RTA, due to wrong Foley's catheter, due to instrumentation, whatever the reason, mostly in these type of you can say there is posterior urethral rupture commonly. Okay, anterior urethral rupture, where it is common, it's mostly anterior urethral rupture is during sexual trauma. So we'll discuss later on how they. Must remember these four important: anterior and posterior urethra. Posterior urethra. Look at that. I told you pelvic trauma, pelvic fracture in 90%. No. Yes. Now, initially I asked you one question: what are the SPAR diagnoses? अगर आप renal trauma पढ़ रहे हो, आप कोई भी trauma पढ़ रहे हो, thoracic trauma पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी patient deal कर रहे हैं, आपकी कुछ SPAR diagnosis जिसको आप देखते ही, अगर ये दो चीजें हैं तो renal है, दो चीजें point या तीन चीजें हैं तो urethral injury है, अगर कुछ ये चीजें points हैं तो pelvic liver भी injured है, तो there are few important, जिसको कहते हैं SPAR diagnosis. ठीक है, हर ट्रॉमा की स्पॉट डायग्नोसिस होती है. अब क्या डायग्नोसिस स्पॉट डायग्नोसिस हो सकती है यूरेथ्रल ट्रॉमा की? ये सेकंड एंड थर्ड देखिए आप, इनएबिलिटी टू वॉइड एंड ब्लड एट यूरेथ्रल मीटस. ये दो पॉइंट स्पॉट डायग्नोसिस है जो आपको क्लिनिकली मिलेंगे. जैसे आप पेशेंट जाएंगे, पेशेंट रिटेंशन में होगा एंड यूरेथ्रल और देयर इज मीटस, ब्लड एट द यूरेथ्रल मीटस. अब रिटेंशन में होगा. आपको ये क्वेश्चन थ्योरी में अगर आया भी तो इस तरह भी आते हैं क्वेश्चंस कि यंग पेशेंट ब्रॉट इन कैजुअलिटी एंड हिज ब्लड प्रेशर समथिंग समथिंग, और वो आपको बीपी कुछ भी दे सकते हैं. उसको आप वो अच्छी तरह देखिएगा कि आपको वो ब्लड प्रेशर लो में देता है तो आपको पहले वो मेयर्स करने हैं. ठीक है. एंड पेशेंट ऑन एग्जामिनेशन देयर इज अ हाइपोगैस्ट्रिक मैस. अब तब आप लोग कहेंगे सर आपने तो हाइपोगैस्ट्रिक मास पढ़ाया ही नहीं था, इसमें कहाँ लिखा हुआ हाइपोगैस्ट्रिक मास? देखें इस स्लाइड में हाइपोगैस्ट्रिक मास है नहीं है, लेकिन सेकंड नंबर को देखें आप, जब इनएबिलिटी टू वॉइड
इसका मतलब पेशेंट रिटेंशन में होगा तो ब्लैडर डिस्टेंड होगा, उस डिस्टेंडेड ब्लैडर को हम हाइपोगैस्ट्रिक मैश कहते हैं। तो थ्योरी में इस तरह हम चेंज भी करते हैं, ठीक है ना। जो रेटाफिकेशन करते हैं स्टूडेंट वो फंस जाती हैं बेचारियां, ठीक है। तो इनएबिलिटी टू वॉइड मीन्स रिटेंशन भी दे सकते हैं वर्ड, इनएबिलिटी टू वॉइड इसी सेम ऐसा वर्ड भी आ सकता है, या देयर इज हाइपोगैस्ट्रिक टेंडर मैश, हाँ डेफिनेटली एक्यूट रिटेंशन में टेंडरनेस होगी। और देयर इज अ ब्लड एट यूरिथ्रोमियटिस। अब दो पॉइंट्स आपके यही है, दो स्पॉट डायग्नोसिस, ठीक है। और ऑफ यूरिथ्रल ट्रॉमा याद रखें। रीनल ट्रॉमा की स्पॉट डायग्नोसिस क्या है? देयर बी एक्सटर्नल एविडेंस ऑफ इंजरी एट द फ्लैंक, वो चाहे ब्लंट हो, बुलेट हो, स्टैब हो, कोई भी हो, आपको इंजरी मिलेगी आपको फ्लैंक में। और दूसरा हेमेचुरिया। देखिए ग्रॉस हेमेचुरिया 98% यूरी, चाहे वो रीनल हो, यूरिट्रिक हो, ब्लैडर हो, यूरिथ्रल हो, हेमेचुरिया होगी। अब ग्रॉस 98% ग्रॉस होती है, 2% में माइक्रोस्कोपिक भी होती है। छोटा सा स्टेप हुआ, किडनी को टच हुआ उसमें अब हेमेचुरिया नहीं आ रही, आपने रूल आउट कर दिया नो। जो पहले मैंने कहा था डिप स्टिक, वो डिप स्टिक इसलिए करते हैं कि कहीं माइक्रोस्कोपिक हेमेचुरिया तो नहीं है। तो रिमेंबर, आपसे कोई अगर इफ एनीबॉडी आस्क्स इन दिस वे, if patient you have examined the patient, urine is clear, so can you rule out hematuria? You said no. Is there is 2% chance of microscopic hematuria? Okay, so inability to void, blood at the meatus, pelvic, suprapubic, pelvic और suprapubic tenderness मैंने आपको कहा था, inability to void and suprapubic tenderness, तो टेंडर मैस भी है। अब लास्ट पॉइंट को देखिए आप, हेमेटोमास बनते हैं, हेमेटोमास बनते हैं। अगर आप वार्ड पोस्टिंग में आएंगे हम आपको ये दिखाएंगे आपको कि यहाँ इसमें आपकी ऑस्पी भी होगी इंशाल्लाह। जो भी पिनाइल स्क्रोटल पेरिनियल हेमेटोमा, टाइप ऑफ हेमेटोमा विल टेल यू द साइट ऑफ इंजरी। बटर दिखाते हैं आपको कि टाइप ऑफ हेमेटोमा क्या। Very important point on examination in casualty when you are doing the rectal examination of a patient having a urethral trauma. There's a bogey or high riding prostate. What is that? Bogey or high riding prostate. This always occur in a type 3 trauma, urethral injuries. Type 1 क्या था? Contusion. याद करें। Type 2 क्या था? Partial tear. टाइप 3 क्या था? कंप्लीट टीयर। तो कंप्लीट टीयर में आपको डीआरई पे, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन पे आपको ये फाइंडिंग मिलेगी जिसको कहते हैं, क्योंकि कंप्लीट टीयर की वजह से प्रोस्टेट ऊपर चला जाएगा। अब डीआरई करेंगे अपनी जगह पे प्रोस्टेट मिलेगा ही नहीं, ऊपर चला जाएगा, इसीलिए इसको वर्ड यूज करते हैं हाई राइडिंग प्रोस्टेट, ठीक है। तो याद रखें आप। ये भी हो सकता है आपको सिनेरियो में दे दें, इनेबिलिटी टू अवॉइड और meatus, blood at the meatus on DRE, there is ill-defined mass, no prostate can be palpate। ये पॉइंट्स याद रखने हैं आप। इस स्लाइड को छोड़ते हैं, इसी पे आप सो रही होंगी। Look at that. This is very important point, and जो which I want to show is a posterior urethral injury, complete tear है। देखिए आप, prostate और urethra का कोई रप्चर नहीं, prostate ऊपर चला गया है। Now, if you do the digital rectal examination, you cannot find the prostate. Now, this black is whole black is blood. You cannot palpate the prostate. Okay, so this is a high riding prostate, posterior urethral injury, और टाइप 3 है, टाइप 2 है। अब हाँ, टाइप 3 शाबाश, टाइप 3 इंजरीज, ठीक है। चलिए, अब व्हिच इन्वेस्टिगेशन इज इंपॉर्टेंट। आप मेयर्स क्या लेंगे? आप कैजुअल्टी में कहेंगे पेशेंट को ब्लड एट द मीटस है, हाइपोगैस्ट्रिक डल मैस है, टेंडर मैस। आपने देखा 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, पेशेंट रिटेंशन में भी है, ब्लड मीटस में भी। अब क्या करना है कि आपने कैथेटर डालना या नहीं डालना। डोंट पुट द कैथेटर, याद रखें, डोंट ट्राई टू कैथेटर इन व्हेन यू सस्पेक्ट अ यूरिथ्रल इंजरी। व्हाई? ये भी मुझसे पूछेगा बाद में डिस्कशन में, इंटरेक्टिव डिस्कशन लास्ट 15 मिनट्स जो होंगे 20 मिनट्स में। नाउ दिस इज द investigation of choice that is known as a retrograde urethrogram.
Now, if there is a written a retrograde urethrogram, it means there is an antegrade urethrogram. ठीक, तो हम रेट्रोग्रेड यूरोग्राम प्री टेस्ट अब किस तरह करते हैं? रेट्रोग्रेड यूरोग्राम सेम जैसे इंट्रावेनस पाइलोग्राफी होती है, सेम वी पास स्मॉल ट्यूब कैथेटर, हो सकता है इसके बाद स्लाइड हो, हाँ ये देखें, दिस इज रेट्रोग्रेड यूरोग्राम। एक छोटा सा ट्यूब डाला हुआ है यूरिथ्रा में, इसमें हम सिरिंज के थ्रू कंट्रास्ट डालेंगे तो होल यूरिथ्रा विल बी स्पेसिफाइड ओपेसिफाइड। ओके, अब देन वी विल टेक अ फिल्म। ठीक है, वो जो एक्सरेज लेते हैं रेट्रोग्रेड यूरोग्राम करने के बाद जो भी फिल्म होगी हमें पता चल जाएगा कि रेट्रोग्रेड यूरोग्राम में पार्शियल टीयर है, कंप्लीट टीयर है या जस्ट कंट्यूजन है। कैसे पता चलेगा? नहीं, अब आप देखें रेट्रोग्रेड इंटरप्रिटेशन क्या होगा। पार्शियल टीयर में कंट्रास्ट जाएगा, कंप्लीट में जाएगा, डिफरेंस क्या होगा? मैं तो वैसे अभी आप लोग लकी हो, वैसे मैं पूछता रहता हूँ आप लोगों से, अभी आप लोग सो रहे हैं, मतलब आप लोग को ये खुद बताते आप लोग। तो फेस टू फेस टीचिंग का कोई वो इट्स नो मैच, नो डाउट दीज आर लिमिटेशंस ऑफ द ऑनलाइन टीचिंग। आप ऑनलाइन डॉक्टर्स बन रहे हैं, फिर करें। तो पार्शियल टीयर है तो यूरोग्राम क्या होगा, और कंप्लीट टीयर है तो यूरोग्राम क्या होगा? ये देखिए आप, कंट्रास्ट एक्स्ट्रावेजेशन कंट्रास्ट इन द ब्लैडर। देखिए अगर पार्शियल टीयर है तो ये समझे कि एक ट्यूब है जो जहां से छोटा सा एक टीयर आ गया है, लेकिन कंटिन्यूटी है, कंट्रास्ट आगे ब्लैडर में भी जाएगा और लीक भी होगा, तो इसलिए दोनों पॉइंट्स मिलेंगे आपको पार्शियल टीयर में, कंट्रास्ट एक्स्ट्रावेजेशन भी, कंट्रास्ट इन ब्लैडर, दोनों चीजें मिलेंगी। On the contrary, if you go for the complete tear, what will you find? Contrast extravasation only. क्यों? I'm going back, showing that partial complete here. Going back, few slide back. Sorry. इसमें देखिए आप, इसमें अगर यूरिथ्रा से आगे इसे हम कंट्रास्ट डालें, ब्लड में कैसे पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो ये पार्ट टाइप 3 में एक्स्ट्रावेजेशन, जहां पे आपको ब्लड नजर आ रहा है, कंट्रास्ट इसी में चला जाएगा, ऊपर ब्लैडर में नहीं जाएगा। सो देयर विल बी ओनली एक्स्ट्रावेजेशन, नो कंट्रास्ट इन द ब्लैडर। ओके, लुक एट दैट, दिस इज दैट पार्शियल टीयर, ऊपर लिखा हुआ है, देखिए कंट्रास्ट एक्स्ट्रावेजेशन भी है और ब्लैडर में पहुंच गया। दिस इज पार्शियल टीयर, दिस इज यूरोग्राम। ओके, हाँ, इंटरप्रेट देखिए आप यूरोग्राम कैसे करते हैं। दिस इज कंप्लीट टीयर, ओनली एक्स्ट्रावेजेशन, नो कंट्रास्ट इन द ब्लैडर। हाँ, दिस इज पॉइंट कि आप पार्शियल टीयर कैसे, इसमें लिखा हुआ है केयरफुल पैसेज ऑफ 12 to 14 FR Foley's catheter, इफ एनी रेजिस्टेंस कॉल यूरोलॉजी। अब देखें यही तो जुल्म है ना, बस आप लोग टेक होम मैसेज ये है कि पार्शियल टीयर या कंप्लीट तो बाद में पता चलेगा आपको, तो केएलटी बोला जाए, यू विल कॉल केएलटी एज अ डॉक्टर, पेशेंट इज रिटेंशन, यू डेफिनेटली यू हैव टू deal the retention of urine, and you definitely you will take the catheter and you will start the catheter. No, don't put the Foley's catheter when you are suspecting even 10% suspicious that there is urethral injury to a suprapubic puncture. Do not urethral catheter. Leave the retention by suprapubic puncture, not by Foley's catheter. क्योंकि ये देखें सेकंड लाइन में क्या है, इफ एनी रेजिस्टेंस कॉल यूरोलॉजिस्ट, तो हमें कॉल करने, ये कॉल नहीं करते। ठीक है, और व्हाट हैपन ये क्वेश्चन भी आप बाद में डिस्कस कर, लिख लें आप, व्हाट हैपन इफ यू आर ट्राइंग टू पास Foley's catheter in partial tear, व्हाई इट इज कंट्राइंडिकेटेड, डिस्कस कर, ये लिखते जाएं, मुझे मैं भूल जाऊंगा, आप भूल जाएंगे तो नुकसान आपका मेरा नहीं है, डिस्कस जरूर कीजिएगा। डिस्कशन के बगैर मैं आपको बैठने नहीं देता हूँ, और आज आप चुप करके सुन रही हैं, बड़े
कितने हम लोग मजबूर हैं। यस, कंप्लीट टीयर देखें आप, यूरोलॉजी है, इसमें कंप्लीट टीयर सस्पेक्ट कर रहे हैं, यूरोलॉजी को बोले सुप्रापेबिक कैथेटर यहाँ डालें। देखिए यहाँ पर आ गया सुप्रापेबिक कैथेटर, लेकिन आप यूरोलॉजी वाले ही कह रहे हैं आपको कि सुप्रापेबिक कैथेटर डालें। ठीक है, मैसेज क्या है, यूरोथल ट्रॉमा में यूरोथल कैथेटर नहीं डालते, बस रिमेंबर इट, डोंट पुट द फुल यूरोथल कैथेटर इन any suspicious of urethral trauma, any type of urethral trauma. If now you are being called urologist, being a urologist, you are being called, when you reach over there, you find that the police has already has been passed. So don't do any foolishness here. Why have you catheterized the patient? Leave it, okay? Now small tube along the Foley angiocath 16 gauge modify, तो यूरिथ्रोग्राम करने के लिए बता रहा है, ये जो लास्ट पॉइंट है ना जिसमें ये लिखा हुआ है कि स्मॉल ट्यूब अलोंग द साइड ऑफ फोली एंजियो 16 गेज, इसको एंजियोकैथ कहते हैं, और मॉडिफाइड। तो ये यूरिथ्रोग्राम क्योंकि फोलीज डाल दिया, अब यूरिथ्रोग्राम कैसे होगा, तो इसलिए ये नुकसान है फोलीज डालने का भी। जी जी बिल्कुल ठीक है, आप लोग सुनिए, आप सुप्रापेबिक कैथेटर डालने का यही एडवांटेज है, suprapubic catheter डालें, deal the retention, then pause small and do the urethrogram separately. Controversial, complete versus partial tear. You don't know where is complete and is partial. Posterior versus anterior. This is the partial tear है, complete tear है, posterior tear है, या anterior versus. तो फोलीज कितना सुप्रापुबिक कैथेटर, तो कंप्लीट टीयर कुछ भी हो, आपने इससे रिटेंशन रिलीव करनी है, यूरिथ्रोग्राम करना है। लोकल मैनेजमेंट यही है, सिस्टमिक मैनेजमेंट आपको शॉक मैनेज करना है, वो सारी चीजें, अदर इंजरीज जो भी हैं जो वो आपने डील करनी है। ठीक है, लेकिन इसमें आप 2 पॉइंट याद रखें कि आप कंप्लीट कैसे डिसाइड करेंगे कंप्लीट है पार्सल है, यूरिथ्रोग्राम से, और पोस्टीरियर या इंटीरियर कैसे कंफर्म करेंगे, ये भी यूरिथ्रोग्राम से करेंगे। और वैसे भी टाइप ऑफ हेमेटोमा विल टेल यू द पोस्टीरियर और इंटीरियर टाइप ऑफ हेमेटोमा, आई विल टेल यू नेक्स्ट स्लाइड्स, क्या पोस्टीरियर ट्रॉमा में और एंट्री ट्रॉमा में कौन से हेमेटोमास होते हैं, जिससे पता चल जाता है। शेप ऑफ हेमेटोमा विल टेल यू साइट ऑफ इंजरी। फुल कहते हैं नो इफ, अब यहाँ पे आ गया देखें, very important point, initial bladder effluents must be looked at, or any change in color of normal urine should be considered as a blood until unless proved otherwise. हो सकता है आपको कंप्लीट रेड ना हो सकता है थोड़ा सा पिंक इशू हो, कैसे ब्राउन इशू कुछ भी हो, लेकिन अगर यूरिथ्रल ट्रॉमा सस्पेक्ट कर रहे हैं और कलर ऑफ यूरिन इज चेंज इन द नॉर्मल, लिटिल बिट चेंज, must be considered as hematuria until unless proved otherwise. ये देखें पॉइंट्स ऐसे हैं, नेवर रिमूव द अनसस्पेक्टेड पार्शियल टीयर, ठीक है। इसमें इस पॉइंट्स, ये स्लाइड में एक पॉइंट है, मैं नहीं बता रहा हूँ कौन सा पॉइंट है, जो मैंने पॉइंट्स आपको लिखा है वो डिस्कस करेंगे, उसमें उन पॉइंट्स में से एक पॉइंट का आंसर पड़ा हुआ है, ये सारे पॉइंट्स नोट कर लें आप। यस, एनी कलर्ड यूरिन अदर दैट येलो, ठीक है, ब्लड अंटिल, ठीक है, ये वही आपको मैंने लिखा है। एंटीरियर यूरिथ्रल इंजरी, ब्लड इंटरमीडिएट, ये वही सारी चीजें। अब देखिए कंफ्यूजन में आई वुड लाइक टू शो यू type of look at the hematomas. Now look at the sleeve hematoma, like a sleeve, एक shape है, उसके बाद abruptly changing of the normal color. This is the result of, look at that, greenish. Look, this is buck fascia, green, buck fascia, corpora, two corpora, spongism and corpora,
cavernosus, okay, and this green is a Buck's fascia. It limits hematoma. Going back, look, sleeve hematoma. This is anterior injury. Sleeve hematoma never occurs in posterior injury, and this never occurs in a RTA. This is a end result of the sexual trauma. This is a penile fracture associated with a penile fracture. Yes, and this is an anterior trauma. Due to shape, I told you there are type of hematoma we can will guide us that whether it is anterior rupture or posterior rupture. Buck's fascia has limited. Look at that. This is a butterfly hematoma. This is again look at the butterfly hematoma. Whole scrotum is this not never anterior. Anterior-urethral management, no Foley's, 2 urethrograms, suprapubic retention, suprapubic catheterization, and this now is a bladder trauma. Bladder. I told you only 2 important points you have to remember: intraperitoneal and extraperitoneal. Look at that. This is a peritoneal reflection. Again, giving you peritoneal reflection, which covers the dome of the bladder. When bladder is distended, here it ruptures the intraperitoneal bladder rupture occurs. So उसके लिए जैसे for the urethral trauma we are used to perform a urethrogram. To diagnose the bladder trauma, we do a cystogram. ठीक है, ये हम पीपीटी आपको अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह. डोंट वरी. अब देखें सीटी सिस्टोग्राम इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, वो मैंने आपको बस यूथ्रो, आप लोग सिर्फ यूथ्रोग्राम बोलें यूथ्रो ट्रामा में और सिस्टोग्राम बोलें बस. ज़्यादा ये जो सारे स्लाइड हैं आपको वो जस्ट समझने के लिए हैं. ये टाइप ऑफ हेमेचूरिया क्या कौन सी है, अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हुई तो मैं आपको दिखाता हूँ. अदरवाइज हम वी आर मूविंग टुवर्ड्स इंटरेक्टिव डिस्कशन. हाँ, ये चीज़ थोड़ी सी आप पिछली स्लाइड देखें. ये ड्रग्स हैं, ये फॉल्स लिखा हुआ है, ग्रास हेमेचूरिया फॉल्स. ये जो यूजर हैं इनका कलर ऑफ यूरिन भी चेंज होता है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. टिपिस्टिक को भी छोड़ें आप. रीनल इंजरीज अभी टाइम नहीं है. अगर किसी से लेक्चर, जैसे अभी आज आर्थो वालों से हमने एक लेक्चर लिया है, अगर कोई आगे कोई लेक्चर मिला तो हम रीनल इंजरीज को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. वी आर मूविंग टुवर्ड्स इंटरेक्टिव सेशन. एनी क्वेश्चन एंड डिस्कशन, यू आर वेलकम. हेलो हेलो. सर आपने कैथेटर का बोला था कि कैथेटर जो है वो पेल्विक यूरेथ्रल इंजरी में जो है हम यूज नहीं करेंगे, तो उसका बताएं. इंजरी को यूज कैथेटर नहीं करेंगे, सही है. क्यों ही नहीं करेंगे, आपको मैंने यही दिया था कि हम डिस्कस करेंगे व्हाई वी आर नॉट यूजिंग. व्हाट हैपन अगर हमने यूज कर भी लिया तो क्या डेंजर है जिसकी वजह से अवॉइड कर रहे हैं. देखें, रीजन ये है कि अगर वो पार्शियल टीयर में, आपको तो नहीं पता ना, हमें नहीं पता होता, बस ब्लड आ रहा है, हमें नहीं पता अंदर कंप्लीट टीयर पार्शियल टीयर, और आपने थोड़ा सा फोर्स दिया तो यू विल चेंज द पार्शियल टीयर इनटू द कंप्लीट टीयर, एंड इट इज वेरी डेंजरस. क्योंकि आउटकम ऑफ अ पार्शियल टीयर एंड आउटकम ऑफ अ कंप्लीट टीयर एंटायरली डिफरेंट. कंप्लीट टीयर में जो है ना, वो पेशेंट को तो यूरोप्लास्टी की तरह हो जाएगा. अब एंड टू एंड एनास्टोमोसिस लेटर ऑन तो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती है, इवन द कॉर्डी, इनकॉन्टिनेंस, इम्पोटेंसी, सब चीजें हो सकती हैं, तो इसीलिए अवॉइड करते हैं. यस. थैंक यू.
हेलो हेलो। सर आपने इम्पोर्टेंस का रीजन नहीं बताया। हाँ, इम्पोर्टेंस का रीजन देखिए, इम्पोर्टेंस रीजन ये होता है कि अगर जहां पर भी ये रूल है पूरी बॉडी में, हीलिंग बाय फाइब्रोसिस, ओके, एग्रीड पता है। अब अगर जहां पर यूथल ट्रॉमा हुआ और जो ना वो ट्रॉमा की वजह से फाइब्रोसिस हुई, तो जैसे एट द टाइम ऑफ इरेक्शन, the time of erection there will be fibrosed area, it will lead not allow the penile corpora to erect full, so impotence will be occur. So this, जिसको हम कार्डी भी कहते हैं, तो फाइब्रोसिस की वजह से इरेक्शन पे इफेक्ट होगा। अच्छा, तो इसीलिए वो कंप्लीट टीयर में इसके चांस ज्यादा हैं। ओके सर। अच्छा, एनीबॉडी इनकॉन्टिनेंस जो है, ओके, इनकॉन्टिनेंस क्यों होगी? मैंने आपको कहा यदि कि अगर इनकॉन्टिनेंस और स्ट्रक्चर दोनों कॉम्प्लिकेशन है इसकी यूथल ट्रॉमा की, एनीबॉडी इनकॉन्टिनेंस क्यों होगा और कब होगा? सर ब्लड मौजूद है ना, तो फिर वो उसकी वजह से ब्लडर पे प्रेशर होगा शायद, इस वजह से। ना, इनकॉन्टिनेंस मींस फ्यूचर में, उस वक्त नहीं। आप समझे, लेटर ऑन दिस इज अ इनकॉन्टिनेंस, इम्पोर्टेंस एंड स्ट्रक्चर, दीज आर द डिलेड कॉम्प्लिकेशन sequelae of a structure, youthful trauma. Okay, अब youthful trauma in future may lead incontinence. Youthful trauma in future may lead youthful structure. Youthful trauma may lead impotence. तो ये incontinence क्यों होगा और कब होगा? Sir, Any mainly good? it is due to damage to the nerves that control the bladder outlet. Good. ओके, ठीक है, आप थोड़ा सा करीब हैं। एनी गुड स्टूडेंट, शाबाश, दैट्स फाइन। नर्व कैन बी डैमेज, ओके, व्हाट एल्स? सर डैमेज होगा। सॉरी? सर पेल्विक फ्लोर अगर डैमेज हो तो। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, यही है जो मैंने ब्लू लाइन दिखाई थी पेल्विक फ्लोर की, वो स्फिंक्टर एरिया है। अगर वो डैमेज हो गई तो इनकॉन्टिनेंस में चला जाएगा पेशेंट। एक्सीलेंट, ठीक है। तो एनी एनी क्वेश्चन? अब सर अच्छा, स्लाइड शेयर कर दीजिएगा। जी जी, सर आपका लेक्चर शेयर कर दीजिएगा। ओके ओके, स्लाइड शेयर कर देते हैं लेक्चर भी। और दूसरा, आप लोगों को मैंने रीनल इंजरीज पढ़ाई हुई है लेक्चर में पहले? सर वी डोंट रिमेम्बर। आई होप सो, ओके। नो सर, आपने रीनल इंजरीज का नहीं पढ़ाया। हाँ, मुझे मुझे पता है कि वो रीनल इंजरीज मैंने नहीं पढ़ाई, लेकिन थोड़ा सा रीनल इंजरीज नहीं पढ़ाई थी, रेट्रोपेडल हेमेटोमास वो भी नहीं पढ़ाए थे। बहरहाल अगर कोई टाइम मुझे कोई लेक्चर मिल गया तो फिर जो है इंशाल्लाह बोल करके। ओके, थैंक यू। अब ये हम लोग, मैं शेयर कर रहा हूँ ये सारी स्लाइड्स, ठीक है। गुड लक, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। कितने पढ़ा है